Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's do some maths. Take Falcon Mathematics in front of you of grade 5 and let's start unit number 3, fractions. Now students, you already have learned fractions from grade 1 to grade 4 and we all know about fractions very well, that fractions shows the division of a whole, and fraction has two parts, a numerator and denominator. Today we are going to do operations with fractions, addition, subtraction, multiplication and division. So first in exercise 1 we are going to add subtractions, and first exercise is add the following fraction with whole numbers. First of all we will learn how to add fraction with whole number. What we have to do to add fraction with whole number? To add a fraction and a whole number, we change the whole number to a fraction by putting 1 as a denominator of the whole number. First 10 over 11 plus 8, how we can do 10 over 11 plus 8. Now 8 is whole number and we have to add it in 10 over 11. First of all we will convert whole number into fraction by putting 1 as denominator. Where we have nothing as denominator we will put 1. So 11 over 10 plus 8 over 1. Now we know that the rule to add two fractions, we must have to make denominators same. To make these denominators same, we will multiply 1 with 10 so that ये 11 over 10 नहीं 10 over 11 एक्सरसाइज में. Fraction is 10 over 11. Fraction is 10 over 11 plus 8 over 1. Now we will multiply 1 with 11. So see 10 over 11 plus 8 multiplied by 11, 1 multiplied by 11. We will multiply numerator and denominator with the same number to make denominators same. Now we have fraction 10 over 11 plus 88 over 11. Denominators are same. Now you can add 10 plus 88 over 11. Write down denominator as it is just same. Now we have 98 over 11. After adding fraction with whole number, we get answer 98 over 11. अब नेक्स्ट करते हैं 8 over 9 प्लस होल नंबर 4. ठीक है, कुछ आपको प्रैक्टिस करवा देती, बाकी आप खुद अपनी कॉपीज़ पे प्रैक्टिस कीजिएगा. 8 over 9
plus whole number 4. By following the same process, convert whole number into fraction, then make denominators same or equal, then add the numbers or add fractions. 8/9 plus 4/1 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. ये 9 है, 1 को भी 9 के इक्वल कर लेंगे. ठीक है, उसका तरीका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. 8/9 प्लस multiply 4 and 9, 36/9. Now see, we have same denominators. Now add numerators. 8 plus 36, write down denominator same one time. Now add 36 plus 8 is equal to 44/9. This is our answer. Now we will practice addition of fractions with different denominators. अभी तो हमने होल नंबर के साथ एडिशन किए फ्रैक्शन की, अब हम करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. इन एक्सरसाइज 2, सी एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. 1/4 plus 1/8. See, we have different denominators in all. Method वही है. First of all, we will convert the different denominators into same denominator. Then we will add the numerators. ठीक है. So first one is 1/4 plus 1/8. चलो इसको ऐड करते हैं. We are doing exercise 2. Add the following fractions with different denominators, and the first part is 1/4 plus 1/8. हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. दो को सेम बनाने के लिए किसी एक फ्रैक्शन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो दूसरे के इक्वल आ जाए. जैसे ये 4 है, वी मल्टीप्लाई 4/2, वी विल गेट 1/8. ठीक है, वी गेट 8 एज डिनोमिनेटर. तो 8 और 8 इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, वी कैन सिंपली गेट 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 over 4 multiplied by 2 plus 1/8. Now see, we have 2/8 plus 1/8. अब डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे. 2 plus 1/8 equal to 3/8 is our answer. ठीक है. Now let's practice another fraction with the 3 different denominators. See here in E, we have 1/2, 3/4 plus 7/5. अब हमारे पास 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. तो 3 डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए कैसे करेंगे? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/5. ठीक है. The easy way to find
व्हाट शुड बी द डिनोमिनेटर फॉर 3? क्या करेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2, 4 and 5. Start with the lowest prime number, 2 one time, again with 2, then 5. Multiply 2 by 2, 4 and 5, 20. It means denominator should be 20 for each fraction, so that we can add all these fractions easily. Now make 1 over 2, 2, 4, 5 equal to 20. Multiply both numerator and denominator with 10. Next, in next fraction multiply numerator and denominator with 5, and the third one multiply with 4. Now you can see 10 over 20, we get 15 over 20 and 28 over 20. किस नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो 20 आएगा। ये फाइंड करने के लिए आप देखें जो एलसीएम आया ना 20, अगर उसको प्रीवियस डिनोमिनेटर जो हमारे पास है उससे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है उससे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 2 10 टाइम 20 होता है, दैट्स वाई हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 टाइम 20, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बोथ अपर एंड लोअर वैल्यू विद 5। नेक्स्ट 5 को चेक किया, जो प्रीवियस डिनोमिनेटर था वो किस नंबर पर डिवाइड करता है एलसीएम को, 4 पर, तो हमने अपर वैल्यू और लोअर को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, वी कैन ऐड इजीली all fractions, 10 plus 15 plus 28 or 20. Now denominator is 20. Fractions with same denominator are also called like fractions, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 25 एंड 28, 53 over 20. After adding we get 53 over 20 as answer. अब हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। वन ओवर 3 प्लस 3 over 8, ठीक है। इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, 1 over 3 प्लस 3 over 8। पहले हमने क्या किया था, जब 2 फ्रैक्शंस थी तो एक अगर
दूसरी के इक्वल आ सकती है, तो सिर्फ हमने एक ही फ्रैक्शन पर वर्कआउट किया था। अब ये दोनों डिफरेंट हैं और दोनों सेम नहीं की जा सकती ना, तो इनको दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 3 को 8 के इक्वल, 8 को 3 के इक्वल नहीं कर सकते। दोनों को किसी ऐसे नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों में ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। जब इस तरह की फ्रैक्शंस हों कि जो दोनों डिफरेंट हों, ठीक है, उनका एलसीएम भी तकरीबन वही आता है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 टाइम 24, इट मीन्स दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 24 होना चाहिए। सो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 3 से। इट मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 and the second fraction is multiplied by 3. मल्टीप्लाई कर लें, 8/24 plus 9/24. Now we have like fractions. 8 plus 9/24. Answer is 17/24. This is the process of adding fractions with different denominators. अब हम करेंगे प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन की। In exercise 4 we will do subtract the following. See, subtract the following. यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं फ्रैक्शन को होल नंबर से। दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन फ्रॉम अ होल नंबर। किस तरह कर सकते हैं? उसी तरह जिस तरह हमने ऐड किया था। फर्स्ट कन्वर्ट होल नंबर इनटू फ्रैक्शन, देन चेंज बोथ fractions into like fractions, then subtract numerators. हम करने लगे हैं subtraction from whole number और एक्सरसाइज है 4। फर्स्ट वन इज 9 subtract 4/9. First convert whole number into fraction, so 9/1 minus 4/9. अब 1 को 9 के इक्वल कर दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 subtract 4/9. 9 टाइम 81/9 subtract 4/9. Now see, we have same denominators, we can subtract now. 81 minus 4/9 इक्वल टू 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें 81 में से 77/9. ये नज़र आ 77/9 नज़र आ रहा है ना 77। चलिए
एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं विथ सेम मेथड। 15 माइनस 8 ओवर 10। 15 माइनस 8 ओवर 10। 15 अब हमें पता है होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with the same number. Now we have subtract numerators, write down denominator as same। 150 में से 8 माइनस कर दें, 142 ओवर 10। ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, we will subtract fractions with different denominators। ठीक है, exercise 5, subtract the following। See, now we have all different denominators। 3 over 4 minus 1 over 2, 4 over 9 subtract 1 over 3, 5 over 10, 5 over 16 minus 7 over 24, और इसी तरह इधर 4 over 15 subtract 6 over 25, 2 over 3 subtract 2 over 9 subtract 1 over 3। अब हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस तरह हमने सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम। इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और विद द सेम डिनोमिनेटर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स। एक्सरसाइज 5, A is 3 over 4 subtract 1 over 2, make both denominators equal if we multiply the right side fraction with 2, we definitely get same denominators। Now we can subtract both easily। 3 minus 2 over 4, answer is 1 over 4, fraction 1 over 4 we get after subtraction। Let's practice another question with 3 different denominators। 2 over 3 minus 2 over 9 minus 1 over 3। We can find out denominator by taking LCM, और सिंपली हम इसको वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 9 है और 3, बाकी दोनों 3 हैं। बाकी दो 3 को अगर हम 9 के इक्वल कर दें, ऑल 3s आर, लेकिन हम LCM फाइंड कर लेते हैं।
वो 9 ही आएगा। थ्री से 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3, मल्टीप्लाई 3 by 3, LCM is 9. It means make all denominators equal to 9. So multiply the first fraction with 3, second fraction with 1, third fraction with 3. क्योंकि अगर हम ये डिनोमिनेटर्स के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 आंसर आता है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड 9 1 टाइम 9 होता है, सेकंड फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई, और थर्ड फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई बिकॉज 3 3 टाइम 9 होता है। ये जो एलसीएम है वो नीचे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उनसे फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। Now we have in fractions 6 over 9 minus 2 over 9 minus 3 over 9. अब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ इनको डिवाइड कर लेंगे। 6 minus 2 minus 3 over 9 and answer is subtract 6 2 from 6, then subtract 3. Answer is 1. One over 9 is our answer. Okay students, ये था हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. By the following the same process you can solve any type of fraction which demands subtraction or addition. ठीक है, subtraction और addition आपको आ गया. अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर. पहले हमने किया एडिशन विद होल नंबर, देन सब्ट्रैक्शन विद होल नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन विद होल नंबर. ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर भी करेंगे. ये तो आपको याद है ना कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होती है. ठीक है, नंबर्स को बार बार ऐड करते जाएं सेम नंबर्स को, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, कहलाता है. नाउ रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद होल नंबर. नंबर 1, स्टेप 1. चले प्रैक्टिस करते हैं इसकी. वी आर गोइंग टू डू exercise 7. Multiply the following. अब रूल्स क्या हैं?
3 होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 फ्रैक्शन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वही है रूल जैसे हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में करते आए हैं। राइट द होल नंबर एज अ फ्रैक्शन। The second step is multiply numerator of the fraction with the numerator of the whole number. Multiply both numerators and multiply both denominators. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 इज आवर आंसर। इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर तो वो कन्वर्ट होते हों लोएस्ट फॉर्म में, देन 3/2 डिनोमिनेटर्स। In exercise 8, multiply the fractions remember to change mixed numbers to improper fractions. Now we have some fractions which are mixed fractions like 5 whole 5/8 2/8 is fraction। जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होंगी उनको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8 and we are going to do multiplication with another fraction. First one is 2/6 multiply by 3/10. Now students, when we multiply a fraction with another fraction, same factors of any two of the fractions can be cancelled out. ठीक है, अगर सेम फ्रैक्शंस सेम फैक्टर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस में, ऑपोजिट फ्रैक्शंस में, तो उनको कैंसल आउट और कट भी किया जा सकता है। जैसे ये देखें 2 नीचे करते हैं 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10। सेम इसी तरह इस साइड पर देखें 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6। नाउ वी हैव फ्रैक्शंस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब हम न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/10 we get as answer। Let's practice another fraction। 20/33 multiply by 5 whole 3/4 with fraction 3/4। चलो अब इसको करते हैं।
20/33 multiply 5 whole with fraction 3/4. Now first step is convert mixed fraction into improper fraction. Rule हमें पता है, multiply whole number with denominator, then add numerator into it. 20/33 multiply 20 and 3, 23/4. Now we will check, can we cancel? Yes, we have same factors. 4 1 time 4 and 4 5 time 20. Now fractions are 5/33 multiply 23/1. Multiply numerators and denominators. Multiply 23 by 5 and 33 by 1. If we multiply 23 with 5, we get 115. By multiplying 33 with 1, we get 33, the number itself, and this is answer. Let's practice another question. 5/3 multiply 15/30 multiply by 4/12. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको डिफ़िकल्ट ना लगे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम. Now we have 3 different fractions. Number 1 3/5, second 15/30, and the third one is 4/12. अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? We will see, we will check same factors which can be cancelled out. 3/5, 15/30, 4/12. अब हम इनका चेक करते हैं. 5 1 time, 5 3 time 15. Now 3 and 1. Same, 3 1 time 3, 3 10 time 30. Now we have fraction 1/1, 3/10 and 4/12. फिर से देखेंगे, इसमें हम कैंसिल कर सकते हैं फैक्टर्स को. 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12. ठीक है, furthermore we can divide 4 1 time and 4 1 time. फर्स्ट फ्रैक्शन भी ख़त्म 1/1, सेकंड थर्ड फ्रैक्शन भी ख़त्म.
देखें 1/1 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/1 ये बचा। सो आंसर इज 1/10। इसी तरह बाकी सारी एक्सरसाइज भी इजीली हम कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये जे 80 होल विद 1/2 फ्रैक्शन, 2 होल नंबर विद 2/7 फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड 7 होल नंबर 1/3 फ्रैक्शन। इसको करते हैं जे 80 whole number with 1/2 fraction multiply by 2 whole number with 2/7 fraction and 7 whole number 1/3 fraction। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा, कन्वर्ट ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 82 टाइम इज 160 add 161 over 2 multiply 16/7 convert the last one 22/3। Now these are the fractions to multiply। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इनको हम कैंसिल कर सकते हैं फैक्टर्स को, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम 16। के अलावा कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा। नीचे चले जाते हैं 161/1 8/7 22/3। नाउ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। Multiply 161 with 8 and then with 22। This is our answer। We done multiplication with whole number and multiplication with other fractions। Now
is 10, and here we have to do solve the following fractions using the distributive property. अब सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी तरह है कि जैसे एक फ्रैक्शंस को जो ब्रैकेट्स में फ्रैक्शंस हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्ज करें, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस a over b multiplied c over d सेकेंड फ्रैक्शन, और थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास e over f। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। नाउ you can see in brackets between the bracket we have 2 different fractions और outside हमारे पास एक और। अब जो बाहर फ्रैक्शन है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और वो आ जाएगा a over b मल्टीप्लाई विद सेकेंड फ्रैक्शन c over d। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन प्लस, अब अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विद द थर्ड वन a over b मल्टीप्लाई विद e over f। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई ऑल फ्रैक्शंस इन ब्रैकेट्स विद द आउटसाइड फ्रैक्शन। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10 में ये फर्स्ट वन देखें, 1 over 3 एंड इन ब्रैकेट्स 2 over 3 प्लस 5 over 6। पहले हम कैसे एडिशन करते थे, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते थे, बट ये मल्टीप्लिकेशन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें अब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है ओवर एडिशन। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे, एंड द फ्रैक्शन इज 1 over 3 मल्टीप्लाई 2 over 3, ये ब्रैकेट जो है ना ये मल्टीप्लाई प्लस 5 over 6। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। क्या था फॉर्मूला, फॉर आउटसाइड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना और एडिशन का साइन बिटवीन उसी तरह रहेगा। सो 1 over 3 मल्टीप्लाई विद 2 over 3। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन, और सेकंड पार्ट में फिर से 1 over 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 over 6। अब उसी तरह न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में 2 1 टाइम 2 over 3 3 टाइम 9 प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे, फिर न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई 1 and 5 over 6 and 3 18। नाउ वी हैव टू डू एडिशन, और एडिशन का फार्मूला वही, फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर्स सेम। अब अगर हम फर्स्ट
फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, वी गेट 5/18। जब एक ग्रेटर नंबर हो हमारे पास और दूसरे नंबर में फैक्टर यानी दोनों नंबर एक दूसरे का फैक्टर हो तो हम एक ही फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कर सकते हैं दूसरी फ्रैक्शन के। 2 2 टाइम 4, 9 2 टाइम 18 plus 5/18. See, now we have like fractions with denominator 18. Add numerators. 4 plus 5 equal to 9/18. इनको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, दोनों सेम है ना। 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18। आंसर 9/18 के अलावा 1/2 भी हो सकता है। 1/2 इज़ लोएस्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर है। The next one is 3. Now we have to multiply fractions with whole number. ये हमें पता है हम कैसे करेंगे। होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। Let's do. In B we have 3 whole and in brackets 2/4 plus 1/4. हम इजीली इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इट 3/1, 2/4 plus 1/4. Now multiply 3/1 multiply 2/4 plus 3/1 multiply 1/4. अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को और न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस से लेफ़्ट साइड पर भी और प्लस से राइट साइड पर भी। 2 3 टाइम 6/4 plus 3 1 time 3, 4 1 time 4. Now we can add easily as we have like fractions. Just add 3 and 6, 9/4. और ये सिंप्लीफाई नहीं होता सेम टेबल से, यही हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज द फुल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नज़र ही नहीं आ रहा, ये मेन सी 5 + 5 मल्टीप्लाइड विद 2/5। टू ओवर 5 को उसी तरह से हमने इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फाइव ओवर 1 प्लस 5/1 multiply 2/5. Now multiply 5/1 multiply 2/5 plus again 5/1 multiply 2/5.
5 इंटू 2 10, इधर ही हम अगर 5 और 5 को कैंसिल कर दें तो 2/1 रह जाता है और इस तरह भी हो जाता है, प्लस अगेन 10/5. We have same numerator, same denominator, just add 20/5. Now we can simplify it. 5 1 time 5, 5 4 time 20, and answer is 4. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हो रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी कर लेते हैं. 4/5 मल्टीप्लाई विद 2/7 प्लस 1/2, और लास्ट वन है 1/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विद 2/7. ठीक है, अब हम ये दोनों भी कर लेते हैं. 4/5 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 1/2. सो 4/5 नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं आना, अब आना है मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 4/5, ये वाला मल्टीप्लाई 1/2. प्लस से राइट साइड और प्लस से लेफ़्ट साइड दोनों पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 8/35 प्लस 4/10. Now to add, we know that we have to make denominators same. उसके लिए क्या करेंगे, LCM ले लेंगे. थर्टी 35 और 10 का 2 5 टाइम 10, अब 5 से 5 7 टाइम 35, 5 1 टाइम 5, अब 7 के साथ 7 1 टाइम 7. मल्टीप्लाई 2 5 and 7, LCM is 70. We have LCM equal to 70. So multiply first fraction with 2 to make 35 equal to 70, and second fraction, if we multiply it with 7, we get 70 as denominator. ठीक है, अब क्या आ गया, 16/70 प्लस 28/70. पुट डाउन साइंस ऑफ इक्वल. अब इनको ऐड कर लें, 16 प्लस 28 को, और 70 एज इट इज़ आ जाएगा. चलें ऐड करें जल्दी से. 28 को
16 के साथ 44/70। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद या नहीं। टू से करें तो 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 35, 22/35। दिस इज़ आवर आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद last part of this exercise is 1/5 plus 3/4 under brackets multiply 2/7। इसको कर लेते हैं 1/5 multiply 2/7 plus 3/4 multiply 2/7। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 2/35 प्लस 6/28। अगेन 35 और 28 को इक्वल करें, लाइक फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट करेंगे। If we take LCM, denominator should be 140. So if we multiply first fraction with 4 and second fraction with 5, we get same denominator. टू 4 टाइम 8 नेक्स्ट पेज पर and 35 4 time 140 plus 6 5 time 30/140. Now add denominators 38/140। अब इसको चेक कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18, 7 टाइम 40 and 19/70 is answer. Let's move to next exercise. Exercise 11. और यहाँ क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। अब हमने फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ डिवाइड करना है। उसी तरह करेंगे, होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आपको पता है कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिविजन्स के लिए रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज़
इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। एक्सरसाइज 11 divide the following fractions by a whole number. First one fraction is 4/5 divide with 5. अब क्या है, first step is convert whole number into fraction. Second step is convert साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे राइट साइड वाली फ्रैक्शन उल्ट हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो इन्वर्टेड फ्रैक्शन 1/5 में चेंज हो जाएगी। अब सिंपल उसी तरह जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 टाइम 4, 5 5 टाइम 25, और यही आंसर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लोएस्ट फॉर्म में ये दोनों नहीं जाएंगी। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ये इजी है। उसी तरह जिस तरह हमने प्लस सब्ट्रैक्शन किया है ना मल्टीप्लिकेशन में, उसी तरह ये डिवीजन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं 10/12 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। टेन ओवर 12 डिवाइडेड बाय 90। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, होल नंबर को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद चेंज करेंगे डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में, रेसिप्रोकल ले लेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन का। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10/12 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन 1080। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 1 टाइम 10, 10 1 टाइम और 10 8 टाइम, 1/18 इज आंसर। डिवीजन विद होल नंबर, अगर हमने डिवाइड करना हो फ्रैक्शन को विद अनदर फ्रैक्शन, उसका क्या तरीका, अब उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सी इन एक्सरसाइज 12 हियर वी हैव डिफरेंट फ्रैक्शंस टू डिवाइड। 3/4 डिवाइड विद 3/5। According to exercise 12 we have to divide 3/4 with 3/5. Now our first step is change the sign and take a reciprocal of next fraction. Now simplify इधर भी कर सकते हैं, देखें 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 and answer is 5/4. Let's practice another question of division. First step is, students remember, dividing by a fraction is equal to multiplication with the reciprocal of the fraction. ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है कि डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल के साथ फ्रैक्शन को। सो इसका हम ले लेते हैं multiplication with reciprocal of the next
डिवाइड का साइन चेंज करने के बाद आपने नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन का नहीं लेना, नेक्स्ट वन का लेना है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट। उसके बाद हम ये देखना है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि क्या इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल चेक कैन वी कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35 जी कर सकते हैं। इसी तरह इधर से भी 10 1 टाइम 10, 10 7 टाइम 70। सो फ्रैक्शंस आर 7/5। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/5। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12, जिसमें हमने इन डिफरेंट फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। बेसिकली क्या करना है, हमने इनका मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज अ सिंपल वे टू फाइंड आउट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बॉडोमस। बॉडोमस आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी किया है नंबर्स एंड ऑपरेशंस में। सेम उसी तरह फ्रैक्शंस में भी बॉडोमस का वही फॉर्मूला वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रूल इधर भी वही है, जस्ट हम देख लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज है बॉडोमस के रूल के अकॉर्डिंग। जी, एक्सरसाइज 14, एक्सरसाइज 14 है और इसके 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिनको हमने इस फार्मूला से करना है। ये 5 क्वेश्चंस हैं इन फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं बॉडोमस को फ्रैक्शंस में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14, Bottomless rule, and the first one is जोड़ा। ये है हमारी अमाउंट। अब हमने इसको करना कैसे है, हमें पता है क्या करेंगे। फर्स्ट सब ऑपरेशंस उसी तरह अडॉप्ट करेंगे जैसे हम फ्रैक्शंस में करते हैं, ठीक है, बट बॉडोमस के अकॉर्डिंग, मींस ब्रैकेट्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसमें जो भी ऑपरेशन हमें अडॉप्ट करना पड़े, जो भी, उसको करेंगे। बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं। 5/8, 3/5 प्लस, अब देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ये फ्रैक्शन, ये ब्रैकेट नहीं अब आना, ये तो सॉल्व हो जाना है ना जी। 1 टाइम 2 इज़ 2/7 टाइम 5 इज़ 35, ठीक है, प्लस 4/6। ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर इसमें कोई दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, हम डिवाइड, डी है तो डिवाइड, डिवाइड का हमारे पास इधर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई वो भी नहीं है, वो हम कर चुके हैं ब्रैकेट्स में।
नाउ ऐड। अब हम एडिशन वाला कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास अब 5/8 माइनस 3/5 प्लस 2/35 प्लस 4/6। अब ये तीन हमने फ्रैक्शंस को पहले क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए 5, 35 और 6 का एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं क्या आना चाहिए। चलें जल्दी से एलसीएम लेते हैं। Okay students, if we multiply 3/5 with 42, क्योंकि एलसीएम जो है इसका 210 आया है, और सेकेंड फ्रैक्शन को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें 35 को, 35 मल्टीप्लाई बाय 6 and 4 multiply by 35। अब हमारे पास आ जाएगा 5/8 माइनस 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 3 टाइम 12 ओवर 210 प्लस 6 and 2 12 ओवर 210 प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें 140 ओवर 210। नाउ वी हैव लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5/8 माइनस सबको ऐड करें 126 प्लस 140 प्लस 12, ये आएगा 278 ओवर 210। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी वही फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब हम 8 को ऐसे 5/8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 210 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 10, ये नहीं आता, इनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, साइड पे ले लेते हैं। 8 और 210, सेवन 3 टाइम 21, 3 1 टाइम 3। Now multiply all these to find out LCM. LCM equal to 2 2 and 2 into 5 into 7 into 3, 40 into 7 into 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 280 into 3
840 LCM is 840। अब क्या है कि 840 डिवाइड होना चाहिए 8 पर 105। इसका मतलब कि फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ और सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। चलो जी, ये आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 525 और नीचे आ जाएगा 840 माइनस, अब हमने क्या करना है 278 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, आ जाएगा 1112। 840। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 525 और 1112 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। $587 over 840। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चंस भी करने हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं C1 की। 5 - 5 question is 5 minus 5 multiply between brackets 11 over 5 minus 9 over 7 plus 6 minus 2 multiply 3 minus 1 over 3। ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रैकेट्स फर्स्ट, ठीक है। तो 5 - 5 मल्टीप्लाई, अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 माइनस 2। अब इनके 3 over 1 माइनस 1 over 3, ठीक है। होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 - 5 मल्टीप्लाई 77 over 35 माइनस 45 over 35 प्लस 6 माइनस 2। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। फर्स्ट वाली को
3 से मल्टीप्लाई करने हैं दोनों को। ठीक है, -1/3। फर्स्ट वाली को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल करने के लिए। अगेन 5 - 5 उसी तरह उतार लें। 77 में से 45 माइनस कर दें। जल्दी से रफ वर्क में करते हैं। 77 - 45 तो आ गया 32/35। ठीक है, प्लस ये 6, फिर माइनस नेक्स्ट 2। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 3 टाइम 9/3 -1/3। 5 - 5 32/35 प्लस 6 - 2 9 - 1 8। मल्टीप्लाई का साइन था इधर, हाँ मल्टीप्लाई का साइन था वो भूल गए हैं। 8/3। ठीक है, ये आ गया हमारा। ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई। ऑर्डर इसमें नहीं है। नेक्स्ट है डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है। मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 - 5/1। ये वाले 5 को कन्वर्ट कर लेंगे ना फ्रैक्शन में। फार्मूला वही है जिस तरह हम करते हैं। मल्टीप्लाई 32/35 प्लस 6। हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। 2/1 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर पॉसिबल है। 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35। तो अब फ्रैक्शन, अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट। 5 - 32 1 टाइम 32 7 1 टाइम 7 प्लस 6 माइनस, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे या अगर सिंप्लीफाई होते हैं सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोथ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया 8 2 टाइम 16 और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट इज एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। 5 माइनस, अब 32 और 6 32/7 प्लस 6/1 को अब हमने करना है। इसको पहले हम बना लेंगे फ्रैक्शन। अब इनको ऐड करेंगे लेकिन डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद। सो 5 माइनस 32/7 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ। अब हमारे पास एडिशन में सेम फ्रैक्शन आ जाएगी। 5 माइनस 37/7 प्लस 42/7 माइनस 16/3। इनको ऐड कर लें। 5 माइनस 37 और 42 को ऐड करना है, वो आ जाएगा 9 and 7 79/7 माइनस 16/3। जी, अब तीनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए भी जिस तरह हम पहले पीछे करते आए हैं उसी तरह करेंगे। ठीक है, इन तीनों को
यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। 5 होल नंबर है, उसको भी फ्रैक्शन में कर लें कन्वर्ट। उसके बाद 79/7, फिर 16/3। अब तीनों डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। 21 आना चाहिए सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 79 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर अब हमारे पास 21 बन जाएंगे। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 105/21, 79 मल्टीप्लाई 3, 237/21 माइनस 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 112/21। अब सब के डिनोमिनेटर सेम है, सबको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबको सब्ट्रैक्ट किया, 105 माइनस 237 माइनस 112। आंसर इज 244/21। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।